Hallelujah. Hallelujah. So this month we are looking upon the topic new beginnings. इस महीने हम एक नई शुरुआत के बारे में देख रहे हैं As we all have entered to the new year 2021, जैसे कि हम 2021 एक नए वर्ष में हम सभी ने कदम रखा है. we are praying and hoping upon Jesus Christ that He is going to do a new beginning in our lives. हम ये प्रार्थना कर रहे हैं और ये आशा रख रहे हैं कि यीशु मसीह हम सभी के जीवनों में एक नई शुरुआत को लेकर आ रहे हैं. Hallelujah. 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 We shall turn our Bibles to Isaiah chapter 43. हम अपने बाइबल में से खोलेंगे यशाया उसका 43 चैप्टर. Isaiah chapter 43, we'll read some of the passages and then we'll learn some of the things from God, that what God wants to communicate to all of us. आज हम इस अध्याय में से पढ़ेंगे और ये देखेंगे यीशु मसीह हम सभी से क्या बातचीत करना चाहते हैं. यशाया उसका 43 चैप्टर. We shall read from 16 verse. हम 16 आयत से पढ़ेंगे. So before that, I just want to take a few minutes to introduce this book Isaiah. मैं इस अध्याय में बोलने से पहले कुछ मिनट लेना चाहूँगा इस पुस्तक के बारे में बताने के लिए. Isaiah was a wonderful book. जो यशाया है वो बहुत ही एक सुंदर पुस्तक है. Written by Isaiah. However, the scholars, they have different opinions about this book, that this book was written by 3 different people. ये जो पुस्तक है, ये जो किताब है, ये यशाया ने खुद लिखी है. जो आज है खोजने वाले भविष्यवक्ता, उनकी अलग अलग राय है कि इस पुस्तक को 3 जनों ने लिखा है. So if you want to know more about this, you can attend Bible study. अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप बाइबल स्टडी में आ सकते हैं. Hallelujah. 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 So when we divide this book Isaiah into 3 different parts. तो जब हम यशाया की पुस्तक का भाग कर लेते हैं 3 अलग अलग उसमें. So 43 chapters come under second part. तो जो 43 इसका अध्याय है ये दूसरे भाग में आता है. And the background of this part was something different. और जो इसका पिछला जो इसका बैकग्राउंड है वो अलग है. So we all of us know that people of Israel were taken to Babylonian captivity. हम सभी को पता है कि जो इजराइल के लोग थे उनको बेबीलोन की तरफ ले जा लिया गया था और उनको वहां बंदी बना दिया गया था. Israelites were taken into Babylonian captivities. और इजराइलियों को बेबीलोन में ले जाकर बंदी बना दिया गया था. It was totally different time for the people of Israel. और ये इजराइल के लोगों के लिए एक बहुत ही अलग समय था. So just concentrate upon what I am telling, okay? इसमें मनन लगाइए कि आज क्या आपको बताया जा रहा है. So Israel had very strong opinion and a strong belief that 3 things will never depart from our lives. जो इजराइलियों थे उनके बहुत ही एक पक्का विश्वास था कि 3 चीजें हैं जो उनके जीवनों से कभी भी अलग नहीं हो सकती. First thing is the promised land, that was Israel. पहली चीज है वो वाचा की भूमि जो खुद इजराइल है. They strongly believed that Israel, the land of promise, is not going to take away from us. वो ये ऐसा पक्का विश्वास रखते थे कि जो वो वाचा की भूमि है, वो जो इजराइल है, वो उनसे नहीं लिया जा सकता. Why? Because they have heard, they have seen that how God gave that promised land to them. क्योंकि उन्हें ये पता था, वो जानते थे कि कैसे परमेश्वर ने खुद उन्हें इस वाचा की भूमि को दिया है. We all of us know how God provided them a beautiful land. Canaan means Israel. हम सभी को पता है कि परमेश्वर ने कैसे ही वो सुंदर भूमि कनान मतलब इजराइल उन लोगों को दी थी. So they strongly believe that this land, promised land, is not going to take away from us. तो इसलिए उनका एक पक्का विश्वास था कि ये जो वाचा की भूमि है वो उनसे नहीं छीनी जा सकती. And the second is और जो दूसरी चीज है king. वो है राजा. King. राजा. God promised to David. परमेश्वर ने दाऊद से ये वाचा बांधी that I will establish your kingdom forever and ever. कि मैं तेरे राज्य को हमेशा और हमेशा के लिए बनाए रखूंगा. So Israelites were believing that the king will never end up. तो इसलिए इजराइल ये विश्वास करते थे कि राजा का अंत कभी भी नहीं होगा. And the third thing is और जो तीसरी चीज है temple of God. वो है ये परमेश्वर का मंदिर.
Solomon's temple. जो सुलेमान का मंदिर भी They कहलाता है। believe that the God of creation, the one who created everything, dwells in the temple. और वो ये ऐसा भरोसा रखते थे, ऐसा विश्वास रखते थे कि सर्वशक्तिमान खुदा खुद उस मंदिर में रहा करता है And no one has power to destroy this temple. और किसी के पास भी इतनी शक्ति नहीं है कि उस मंदिर को गिरा दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So these were the beliefs of Israelites. तो इजरायली जो लोग थे उनके ऐसे कुछ विश्वास थे, But the three things were taken away from them. पर तीनों ही चीज उनसे अलग कर दी गई, उनसे ले ली। When Babylonian entered and captured the people of Israel, जब बेबीलोन वहां पर पधारे और उन लोगों को उन्होंने अपने बंदी बना लिया, अपने कब्जे में कर लिया। they took them away from Israel and brought them into Babylon. और वो इजरायली के लोगों से वो लेकर वो अपने स्थान बेबीलोन में चले गए। Kings were destroyed, जो राजा है वो मिट गए and the temple, Solomon's temple, और सुलेमान का जो मंदिर था वो भी ढहा गया, was destroyed. वो भी ढहा गया। So they were thinking and they were in hopelessness, तो वो निराशा में, तो उनकी सारी आशाएं टूट गई थी and they were becoming a people, those who don't believe in God. और वो ऐसे लोग बन चुके थे जो अब परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। Some of them were atheists. जो कुछ लोग थे वो एकदम विरोध में आ गए थे। Atheist, the one who doesn't believe in God. जो एक ऐसे मनुष्य नास्तिक। जो नास्तिक होते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। Why? ऐसा क्यों? You know, they were thinking that all these things will not be taken away from us, and this is being taken away from us. It means God doesn't exist. क्योंकि वो ये पहले ये सोचा करते थे कि ये सारी ही चीजें हमसे नहीं ली जाएगी, पर ये चीजें जब उनसे ले ली गई तो उनका भरोसा पूरी तरीके से परमेश्वर से हट गया। Hello, सबका ध्यान यहाँ है। my friends. मेरे प्रियो, Sometimes it happens in our lives. कभी कभार ये चीजें हमारे जीवनों में भी होती है। Whatever we believe, strongly believe in God Almighty and upon the Word of God. कि जब हम पक्का विश्वास करते हैं परमेश्वर पर और इस वचन पर, When it doesn't happen, और तब वो चीजें हमारे जीवन में नहीं होती, we start creating in our mind something different opinion about God. तो तब हम अपने दिमाग में परमेश्वर के प्रति कुछ और ही सोचने लग जाते We हैं। start thinking हम ये सोचने लग जाते whether हैं God exists or not. कि परमेश्वर रहता भी है या नहीं। We question upon the existence of God. हम परमेश्वर के ऊपर प्रश्न करने लग जाते हैं कि आप हो भी या नहीं। But there is hope in Christ Jesus. पर परमेश्वर में वो सदा आशा बनी रहनी चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. This part of Isaiah is the book of hope. जो यशाया का ये दूसरा भाग है वो एक आशा का भाग है। Hallelujah. 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 We shall read. So we all of us have something in our minds. हमारे दिमागों में कुछ रहता है, कुछ चीजें रहती है। Now we have something in our minds about the background of this portion. अभी जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम सभी के दिमाग में कुछ चीजें हैं कि इस यशाया की पुस्तक के पीछे। Hallelujah. 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 It will help us to understand. और ये हमारे समझने में मदद करेगा। This was a crucial time for the people of Israel. ये जो इजरायलियों के लिए ये बहुत ही जो था, ये जो समय था वो बहुत ही उनके लिए महत्व वाला Their था। homes were destroyed. जो उनके घर थे वो ढा गए थे। Their relatives were scattered. जो उनके रिश्तेदार थे वो सब इधर उधर बिखर गए थे। Their everything was destroyed. जो उनकी सारी चीजें थी वो नष्ट कर दी गई And थी। they were into foreign land. और वो एक ऐसे भूमि पर थे जो उनके लिए नई थी, एक परदेशी थी। But God of the heaven पर जो आसमानों का खुदा है, sent forth His word. उसने अपने शब्द को उन तक भेजवाया। We shall read 16 verse. हम पढ़ेंगे 43 की 16 आयत। This is what the Lord says. यहाँ पर परमेश्वर देखिए क्या कहना चाहते He हैं। who made a way through the sea, a path through the mighty waters, who drew out the chariots and horses, the army and reinforcements together, and they lay there, never to rise again, extinguished, snuffed out like a wick. Forget the former things. Do not dwell on the past. यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता
है, जो रथों और घोड़ों को शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वह यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। Bible says here, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें ऐसा forget बताता the है, former things. वो जो सारी प्राचीन काल की जो चीजें हैं वो भूल जाए। Do not dwell on the past. अपना हृदय, अपना मन जो है पिछली बातों पर ना लगाए। See, I am doing a new thing. देखो मैं एक नई बात करता हूँ। Now it is springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। Hallelujah. 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 My friends, मेरे प्रियो, I don't know about all of you, मैं आप सभी के बारे में नहीं जानता, but I know about myself. पर मैं अपने बारे में जरूर जानता हूँ। Maybe I may be knowing few things about you, मैं आपके बारे में कुछ चीजें जरूर जान सकता but हूँ, God wants to communicate to all of us in this morning. पर आज की सुबह परमेश्वर आप सभी से बातचीत करना चाहते हैं। I don't know how was the past year about you. मुझे नहीं पता आपके पिछले दिन कैसे थे। The condition of Israel was something different. जो इजराइल की परिस्थितियां थी वो एकदम अलग थी। They were into foreign land. वो एक परदेशी भूमि में थे। They didn't have respect. उनकी वहाँ पर कोई इज्जत नहीं They थी। didn't have sources. वहाँ पर उनके पास कोई स्रोत नहीं था। Not even education. वो कोई पढ़ाई लिखाई उनके पास नहीं थी। They didn't have the privilege of education. उनके पास यहाँ तक वो पढ़ाई करने का वो मौका भी उनके They पास don't. नहीं था। They didn't have the authority to do something. उनके पास कुछ भी ऐसे करने की शक्ति सामर्थ नहीं थी कि वो कुछ कर सके। Not human rights. उनके पास कोई अधिकार नहीं थे। They didn't have human rights even. उनके पास एक मानव जाति होने के जो अधिकार होते हैं उनके पास वो भी नहीं थे। But the Bible says, पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है God of the heaven was with them. कि जो आकाश और पृथ्वी का खुदा है वो उनके साथ था। Hallelujah. Hallelujah. Who said it? और उन्होंने परमेश्वर ने उनसे क्या बोला? Forget the former कि things. प्राचीन कालों की चीजों को भूल जाओ। Do not dwell on the past. जो पिछली बातें हैं उनको स्मरण मत करो। Hallelujah. Hallelujah. Today God wants to tell to all of us. आज परमेश्वर हम सभी से ये बोलना चाहते हैं Forget the former कि things. पिछली बातों को भूल जाए। Let the former things may be removed from your mind even. जो पिछली घटनाएं हैं वो हमेशा से हमारे हृदय और हमारे दिमाग से चली जाए। All the former things. जो पिछली घटनाएं हैं, What did you experience in the past year? जो भी हमने पिछले अपने समय में हमने अनुभव किया है, God wants to tell to all of us. परमेश्वर आज हम सभी से ये बोलना चाहते हैं। Forget it. उनको भूल जाए। Forget it. उनको भूल जाए। And do not dwell in the past. और उस चीजों को स्मरण ना करें। It means इसका मतलब sometimes what happens, कभी-कभार we क्या होता है we have faced so many crucial times in our lives. कि हमने अपने पिछले समय में इतनी परेशानियां का समय झेला We होता है start remembering it, कि हम हमेशा उन घटनाओं को हम याद करते रहते हैं। and our pattern of life becomes just like we are living in that. और हमारे जीने का तरीका ऐसा हो जाता है कि आज भी हम उन पिछली बातों में ही जी रहे हैं। When we remember, जब हम उन पिछली घटनाओं को याद करते हैं we struggle a lot to forget it. तो हम बहुत मुश्किल का सामना करते हैं उन सब चीजों को भूलने के लिए। But God said to the people of Israel, पर आज परमेश्वर इजरायलियों को ये बोलना चाहते forget the हैं former things. कि वो जो प्राचीन काल की घटनाएं हैं उन्हें भूल जाए। Forget means totally taking away from our minds. भूलने का मतलब क्या है? उन चीजों को हम अपने पूरे दिमाग से निकाल फेंके। It should not come to our minds. वो हमारे दिमागों में नहीं आनी चाहिए वो बातें। Let it may be removed. वो हट जाए पूरी तरीके Let से। it may be totally go out. वो पूरी तरीके से चली जाए। Hallelujah. 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 हालेलुया। Then Bible says, do not dwell on the past. तब परमेश्वर की वचन हमारे को ये बताता है कि उन बातों को स्मरण मत करो। And it was a time और ये समय था they were still in Babylonian कि captivity. जो इजरायली थे वो अभी भी बेबीलोन के कब्जे में थे। It was difficult for them to believe in this word of God. और वो उनके लिए बहुत मुश्किल था ये परमेश्वर की बातों की ओर विश्वास करना। They would have told to God, उन्होंने परमेश्वर को बोला, Lord, we are still in Babylonian captivity, परमेश्वर आज भी हम बेबीलोन में कब्जे में and हैं। you are telling to और us, आप हमारे को क्या बोल रहे हैं? you are telling to us और आप हमारे को बोल रहे हैं that forget the former things. कि उन प्राचीन कालों की चीजों को हम भूल जाएं। How we can forget the things
that have heard a lot. वो चीजों को हम कैसे भूल जाए जिसने हमारे को इतना परेशान किया हो, हमारे को इतना दुख दिया हो। These people of Babylon, ये जो बेबीलोन के लोग हैं, they have beaten us, उसने हमें मार पीट की है हमारे साथ, they have tortured us. उसने हमारे को परेशान करा है। It is difficult for us to forget the former things. ये हमारे लिए मुश्किल है कि हम उन प्राचीन कालों की चीजों को भूल जाएं। And they would have told to God, और उन्होंने परमेश्वर को ऐसा बोला होगा, Lord, you want us to dwell in the not to dwell in the past. कि आप ऐसा चाहते हैं कि हम उन घटनाओं का स्मरण ना करें। God, we are still in Babylonian captivity. परमेश्वर, हम आज भी बेबीलोन के ही कब्जे में हैं। We are just like animals. हम जानवरों की तरह वहां रह रहे हैं। We are treated like no human being. हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है कि जैसे हम मनुष्य है ही नहीं। They would have told to God like this. उन्होंने परमेश्वर को ऐसा बोला होगा। But the Bible says पर here, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बताता है, God communicated to them. परमेश्वर ने उनसे बातचीत की। God said to them, परमेश्वर ने उनसे बोला it is the word of कि God ये मेरा वचन है which will come to you जो तुम्हारे पास जरूर आएगा and make a way for you. और तुम्हारे लिए एक मार्ग को जरूर बनाएगा। Hallelujah. 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 I strongly believe that you are still in so many problems. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज भी आपके जीवनों में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। But God wants to tell to all of you, पर आज परमेश्वर आप सभी से ये बोलना चाहते this हैं। is going to be a prophetic word for all of us. ये हम सभी के लिए एक भविष्यवक्ता की एक बात, भविष्यवाणी की एक बात है। Though we are still in problems, कि चाहे हम आज भी परेशान though हैं, we are still in former things, चाहे आज भी हम प्राचीन कालों की घटनाओं but God wants to communicate to all of पर us. आज परमेश्वर हम सभी से ये बातचीत करना चाहते Forget the हैं former कि उन things. सारी घटनाओं को हम भूल जाएं Do not dwell in past. और हम अपनी पिछली बातों को स्मरण ना करें। From today on, your attitude should be, you are completely out of that problem. आज से हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि उन सारी परेशानियों से हम बाहर निकल चुके हैं। Hallelujah. 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 I have totally come out from the problems. This should be your attitude. हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसे कि वो सारी परेशानियां हम पीछे छोड़ आए हैं। I don't know, my friends. मेरे को नहीं पता मेरे What प्रियो was your financial status last year? कि पिछले वर्ष आपका आर्थिक स्थिति कैसी थी। What was your respect past year? आपकी इज्जत लोग कैसे किया करते थे। What was the condition of your household past year? आपके घरों की पिछले वर्ष परिस्थितियां कैसी थी। But God wants to tell to you, पर आज परमेश्वर आप सभी से ये बोलना चाहते हैं forget the former things. कि उन सब प्राचीन कालों की चीजों को आप भूल जाएं Do not dwell in that. और उन घटनाओं का स्मरण ना करें। Your attitude should be different. हमारा जो व्यवहार होना चाहिए वो एक अलग होना चाहिए। God is saying, परमेश्वर आज हम सबसे ये बोल रहे हैं, see, I am doing a new thing. Hallelujah. मैं एक नई चीज Hallelujah. Hallelujah. Let this year may bring so many new things in our lives. हो सके ये वर्ष हम सभी के जीवनों में नई चीजों को लेकर I am doing a new thing. क्योंकि परमेश्वर एक नई चीज करने I जा रहे am हैं। doing a new thing. क्योंकि मैं एक नई चीज करने जा रहा Till हूँ। now, God didn't do new thing. आज तक परमेश्वर ने अगर नई चीजें नहीं करी है, But my friends, पर मेरे प्रियो, whenever He does something, पर जब भी वो कुछ कार्य करता है, before doing, उससे करने से पहले He send His words. वो अपने शब्दों को भेजता है। Hallelujah. 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 I strongly believe that God is going to do so many new things in our मैं lives. ऐसा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सभी के जीवनों में एक नई चीजें करने Because जा रहा this है। is the word of God, क्योंकि ये परमेश्वर का शब्द है which will never fail. जो कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं होएगा। Heavens and earth will pass away, but God has said, my word will never pass away. आकाश और पृथ्वी टल सकती है पर परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता। Hallelujah. Hallelujah. That God is saying, I am going to make new thing. क्योंकि परमेश्वर ये बोलना चाह रहा है कि मैं एक नई चीज करने जा रहा हूँ। Now it springs up. You read further? देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम Yes. उसमें अनजान रहोगे? Yes. God is saying, now it springs up. परमेश्वर बोल रहा है कि मैं एक नई बात करने जा रहा हूँ Now it springs up. और वह अभी प्रकट होगी। Hallelujah. 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 It will spring up. Hallelujah. वो अभी प्रकट होगी। Hallelujah. Hallelujah. From this month onwards, we are going to see so many new things in our lives. इस महीने में ही हम आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी नई चीजों को हम होते हुए देखेंगे। Hallelujah. Hallelujah. And the Bible says here, I am making a way in the desert and streams in the wasteland.
वचन बोल रहा है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। How it can be possible? ये कैसे संभव हो सकता है? How it can be possible? ये कैसे संभव हो God सकता is है? saying here, परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं I am making a way in the desert. कि मैं जंगलों में एक मार्ग बनाने जा रहा हूँ। It is totally difficult. ये बहुत ही एक अद्भुत एक चीज है। Your life may be like desert. हमारी जो जीवन है वो एक रेगिस्तान की तरह जरूर हो सकता है। Your life may be like jungle, हमारा जो जीवन है वो एक जंगल के समान जरूर हो सकता है। and you may not find a way in that हो jungle. सकता है कि उस जंगल में हमारे को कोई भी रास्ता ना मिल रहा You हो। are confused. हम बहुत ही हम कंफ्यूज हो सकते हैं। You are surrounded by chaos. जो हम है वो बहुत ही एक अस्त व्यस्त हो सकता, अस्त हमारा जीवन जरूर हो सकता है। but God is telling to all of us, पर परमेश्वर आज हम सभी से ये बोलना चाह रहे हैं। Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. I am going to make a new thing. कि मैं एक नई चीज बनाने जा रहा हूँ। I am going to make a way in where seems to be no way. मैं वहाँ रास्ता बनाने जा रहा हूँ जहाँ रास्ता अभी नहीं दिख रहा है। Oh, you cannot see that way, हमारे को वो रास्ता नहीं अभी but दिखेगा। I am able, God, and I will make way. Hallelujah, क्षमताएं प्रभु कि मैं वहाँ पर भी रास्ता तेरे लिए जरूर बनाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. Your duty is to believe in the word of God. हमारा ये कार्य है कि हम इस वचन पर विश्वास करें। My friends, मेरे प्रियो, if at all you are in so many problems, हो सकता है कि आज हम बहुत सारी मुश्किलों में हो, forget that पर हम भूल जाएं उन परेशानियों and को start believing in the word of और God. परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना शुरू कर दें। God is saying to all of क्योंकि us, परमेश्वर आज हम सभी से बोल रहे हैं I will make a way. कि मैं तेरे लिए एक रास्ता बनाने I जा रहा will हूं। make a way. मैं तेरे लिए एक रास्ता बनाने जा रहा हूं। Hallelujah. 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 I will make a way. मैं तेरे लिए एक रास्ता बनाने जा रहा हूं। No matter how much problems you are facing, ये आज चाहे हम अपने जीवन में कितनी भी परेशानियों का सामना कर रहे हो, you know about jungle? आप जंगल के बारे में जानते हैं? If somebody put you in jungle, अगर कोई आपको जंगल में छोड़ दे what will be the situation? तो क्या परिस्थिति होगी? You cannot come out from that jungle हम उस जंगल से अपने आप बाहर नहीं आ पाएंगे because there would not be network. क्योंकि वहाँ पर फोन में नेटवर्क No नहीं Google होंगे, Map. कोई मैप नहीं होगा कि हमारे को वो स्थान बताए। No Google Map. कोई वहाँ पर गूगल मैप नहीं मिल पाएगा हमें। You will be wandering here and there. हम इधर से उधर भाग रहे होंगे, व्यस्त हो जाएंगे हम। This was the condition of the people of Israel. इजराइलियों के लोगों की ऐसी ही परिस्थिति थी। Is this your condition? क्या आज हमारी भी परिस्थिति ऐसी ही है? You are wandering here and हम there. इधर से उधर जा रहे हैं, भाग रहे हैं। You go somewhere हम कहीं जा रहे हैं, and knock the door हम वहाँ पर दरवाजे को खटखटा रहे हैं। for a job, एक नौकरी के लिए, for a breakthrough, एक नई आशीषों के लिए, but there is no way out. पर वहाँ पर हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। My friends, मेरे प्रियो, your condition may be like jungle, हमारी परिस्थिति आज एक जंगल की तरह जरूर हो सकती but है, God is saying, पर परमेश्वर हम सबसे ये बोल रहे हैं I am making a way in the desert. कि मैं एक जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। Hallelujah. 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 I am going to make a way in jungle. कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाने जा रहा हूँ। Hallelujah. 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 God is saying to all of us, my परमेश्वर friends. आज हम सबसे ऐसा बोल रहे हैं। Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो परमेश्वर तेरा। My friends, मेरे प्रियो, and the Bible says further here, और वचन आगे बता रहा है and streams in the wasteland. कि गीदड़ और शुतुर्मुर्ग उसी के आगे. मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहूंगा। Yes, streams in the wasteland कि मैं निर्जल देश में नदियां बहाने जा रहा हूँ, where there is no waters, जहाँ पर एकदम सूखा पड़ा है, कोई जल नहीं है, just like no desert. एक रेगिस्तान की तरह। In the desert, I will make streams. निर्जल देश में रेगिस्तान के जैसे भूमि में मैं जल को बहाने जा रहा हूँ। Hallelujah. 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 I pray and believe that God is going to do all these things in our lives. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ और मेरी ऐसी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सभी के जीवनों में ये कार्य करने जा रहा है। You know about streams? क्या आप नदियों के बारे में जानते हैं? Sota. You tell Sota, huh? सोता।
You know about streams? क्या आप सोते के बारे में जानते हैं? When you go to Sahasradhara somewhere, you find streams जब हम coming. सहस्त्र धारा या ऐसे पानी वाली जगहों में जाते हैं तो हमें पानी का एक It स्रोत never मिलता है। ends. और वो जो सोता होता है उसका कभी भी अंत नहीं होता। It always come out. The waters come जो out पानी always. होते हैं, उस झरने से उस सोते से हमेशा बहता रहता है। My friends, मेरे प्रियो, God wants to do this kind of thing in our lives. परमेश्वर आप सभी के जीवनों में ऐसे ही सोते को बहाने जा रहे Though हैं। it may be summer, चाहे गर्मी हो, it may be winter, चाहे ठंड हो, every season, हर एक मौसम God wants to bring streams in our lives. परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों के सोते को बहाने जा रहे हैं। Hallelujah. 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 My friends, मेरे प्रियो, my dear ones, मेरे प्रियो, I just want to tell you, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, God is going to do this kind of thing in our lives. परमेश्वर आज हमारे जीवनों में कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, He is able God, क्योंकि वो क्षमताई प्रभु for है, whom everything is possible. जिसके लिए हर एक चीज संभव है। Though it seems like you don't have streams in our lives, ये हो सकता है कि आज हमारे जीवन में वो स्तोत्र नहीं हो, it is dryness, बहुत सूखा हो, your financial condition is something like dry, हमारी आर्थिक स्थितियां पूरी सूख गई you हो, don't have money to buy what you would like, हमारे पास इतने भी पैसे ना हो कि जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसको खरीद सके। but God wants to tell to all of पर us, परमेश्वर आज आप सभी से ये बोलना चाहते I हैं am going to make streams. कि मैं तेरे जीवन में उस सोते को बहाने जा रहा हूँ। Hallelujah. 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 हालेलुया। My friends, मेरे प्रियो, this was the condition of the people of Israel. इजराइलियों की कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी, But God comforted them. परमेश्वर ने उनको आराम दिया अपने वचन के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। And it happened और ऐसा ही हुआ when we read passages, chapters further, जब हम आगे अध्यायों को पढ़ते हैं, we see how they were rescued, हम how देखते हैं they were coming out from the Babylonian captivity. कि बेबीलोन के कब्जे से उनके बंदी से वो कैसे बाहर निकले। Hallelujah. हालेलुया। My friends, मेरे प्रियो, God is able God. परमेश्वर एक बहुत ही क्षमताई प्रभु है। God is wonderful God. परमेश्वर एक महान परमेश्वर है। Whatever He says, वह जो भी बोलता है He does. वो वही करता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says further, we'll read some of the passages. Yeah. 20 verse. And the wild animals honor me, and the jackals and the owls, because I provide water in the desert and streams in the wasteland, to give drink to my people, my chosen, the people I formed for myself, that they may proclaim my praise. गीदड़ और शुतुर्मुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणवाद करें। God is telling about the animals. जो परमेश्वर है यहाँ उन जंगली जानवरों के बारे में बोल रहे हैं। God is telling wild animals honor me. परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं कि जो वो जंगली जंतु है, Why do they honor God? वे परमेश्वर की महिमा क्यों करेंगे? Because God provides everything for them. क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को वो सारी चीजें दी हैं। And God wants to tell to them और परमेश्वर उनसे बोलना चाहते हैं that the people I formed for myself, कि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए, that they may, I have called, I have chosen the people of Israel. वो लोग जिनको मैंने चुना है, जो मेरी प्रजा है, इजराइलियों के लोग, Why I have chosen them? मैंने उन्हें क्यों उनका चुनाव Why किया है? I have formed them? क्यों मैंने उन्हें बनाया है? Because they may praise God. ताकि वे मेरी महिमा करें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let this year may be a year of praising God. ये जो साल है वो परमेश्वर को महिमा देने का What साल God है। has done for your life, परमेश्वर ने हम सबके जीवनों के लिए जो कार्य किया what God है, has done in your lives, परमेश्वर ने जो हमारे जीवनों में कार्य किया My है, friends, मेरे प्रियो, every time, हर समय, every moment, हर एक क्षण we should praise God. जरूरी है कि हम उस परमेश्वर को महिमा दें। How we can praise हम God? परमेश्वर को महिमा कैसे दे सकते हैं? Only by telling to others
दूसरों को ये बता के It is good to you can praise God when you go alone in the presence of God and start praising God. God, you have done this and that. ये अच्छा है कि हम परमेश्वर की महिमा करें अकेले में, जब हम परमेश्वर के साथ समय बताते हैं वो अच्छी बात है। But David says, पर जो दाऊद है वो ये बोलता है I will sing praise in the assembly of the people. कि मैं लोगों के बीच में जाकर तेरी महिमा करूंगा, उनके तेरे बारे में बताऊंगा। My friends, मेरे प्रियो, go to the people. लोगों के पास जाइए, Go to your relatives. अपने रिश्तेदारों के पास जाइए, Go to the people to whom you don't know उन even, लोगों के पास जाइए यहाँ तक जो हमारे लिए अनजान हो, and praise God. और परमेश्वर की महिमा करें। Tell about God. उनको परमेश्वर के बारे में What बताएं, God has done in your life. बताएं कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों में क्या-क्या Tell काम किए them. हैं, उन्हें बताइए How God has rescued you. कि परमेश्वर ने हमें कैसे बचाया How है, God has blessed you immensely. परमेश्वर ने हमारे को अद्भुत रूप से कैसे आशीषित किया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you don't tell about God, अगर आप ऐसा नहीं बोलते हैं प्रभु को, you don't fulfill the word of God. तो इसका मतलब हम परमेश्वर का जो वचन है उसका पालन नहीं करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Bible says here, the people I formed for myself that they may proclaim my praise. जिन लोगों को मैंने चुना है वो इस प्रजा को इसलिए चुना है ताकि वो मेरा गुणगान करें। But are we praising God? Are we proclaiming praises to God? पर क्या आज हम उसको महिमा दे रहे हैं, उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं? We need to think upon this. जरूरी है कि हम सोचें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। My friends, मेरे प्रियो, God wants to communicate to all of us परमेश्वर हम सभी से बातचीत करना चाहते हैं that forget the former things. कि प्राचीन कालों की घटनाओं को भूल जाए, Forget the former things. वो जो पिछली बातें Do हमने not भूल dwell जाए, in the past. उनको स्मरण ना करें। Whatever the past was, जो भी हमारा प्राचीन काल का पिछला वह don't समय remember था, it. Don't उनको- dwell in that. उनको स्मरण ना करें, याद ना करें उन चीजों का। Start a new attitude. एक नया व्यवहार अपनाएं। Whatever you believe, believe that, oh, it will be done in my life. जो भी हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में घटे, Start dwelling in that. उनको उन चीजों का स्मरण करें। Do not dwell in the past. अपनी पिछली बातों का स्मरण ना करें, Dwell in prophetic. बल्कि भविष्यवाणियों की तरफ स्मरण करें। Whatever you think जो भी हम सोचते हैं, is good for the future, अगर वो हमारे भविष्य के लिए अच्छा start है, dwelling in that. उन चीजों की ओर ध्यान लगाएं। Start dwelling in that. उन चीजों को स्मरण करें। Hallelujah. Hallelujah. One preacher, I just want to tell about a preacher. मैं एक पास्टर के बारे में बताना चाहूंगा। He had a great passion to preach the word of God. उनका परमेश्वर के वचन को जो बताने का बहुत ही एक पैशनेट थे वो इस चीज के लिए, And he wanted to preach among big, huge crowd. और वो बहुत ही भीड़ में जाके परमेश्वर के वचन को बताना चाहते So थे। what he did is, तो उन्होंने क्या किया, he just went to the ground, वो एक ग्राउंड में चले गए climbed over a tree, और एक पेड़ के ऊपर चढ़ start गए preaching. और वो वहाँ पे परमेश्वर का वचन No बोलने was लगे। no was listening, वहाँ पर कोई उन्हें नहीं सुन but रहा he था, had passion. पर उनका ऐसा जुनून था, He started dwelling in prophetic. वो भविष्यवाणी की तरफ स्मरण करने लगे, उसमें जीने And, लगे। and and one day God enabled him और परमेश्वर ने एक दिन उनको ऐसा बनाया that he preached among a huge crowd. कि वो बड़ी भीड़ में जाकर परमेश्वर